A very good morning to everyone. Before we start the session, can I please request the team to play the session AV? Session tone. I would now like to invite Mr. Akhilesh Rati, President, Indore Management Association and Managing Director of Savit Universal Limited, to please escort our esteemed guests, Mr. Shri Govind Bhai Dholakia, Founder and Chairman of Shri Ramakrishna Exports and Shri Ramakrishna Knowledge Foundation, धन्यवाद. and Mr. Sunil Singhania, the founder of Abacus Management. नमस्कार. धन्यवाद. May I now request Mr. Darpan Anand, Managing Director, Punjab Jewels, to do the floral welcome of Shri Govind Bhai Dholakia. वाह. धन्यवाद. धन्यवाद. सॉरी. May I now request Mr. Piyush Agrawal, Director, Agrawal Public School, to do the floral welcome of Mr. Sunil Singhania. Thank you. May I now request the AV for Shri Govind Bhai Dholakia. Mr. Govind Dholakia. Shri Govind Dholakia is founder and chairman of Shri Ramakrishna Exports Private Limited and Shri Ramakrishna Knowledge Foundation. SRK consists of 6,000 members and upholds an annual revenue of nearly 14,000 crore. Shri Dholakia's vast experience is an inspiration, and thus he is frequently invited as keynote speaker in institutes such as ISRO, IIM Ahmedabad and IIT Delhi. He is actively involved in more than 30 educational, medical and social trusts in various capacities. He is a strong believer of his HIT formula, honesty, integrity and transparency. Under his guidance, residential rooftop panels were gifted to 1,000 SRKians, 750 martyrs and unsung heroes, and energized Tudhala as the 100% solar village. With initiatives in education, healthcare and rural development, SRK strives to fulfill UN Sustainable Development Goals. He has several Achievement Awards 2020 by GJEPC and by Retail Jewelers magazines for his contribution to global diamond industry. He is the first Indian to receive prestigious leadership awards from US Green Building Council. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Govind Dholakia.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सॉरी, આજે જરા પ્લેનમાં રસ્તામાં કંઈ થઈ ગયું એટલે થોડો અવાજ બેહી ગયો છે, પણ આઈ હોપ્સ કે અવાજ તમને ભાળીને પાછો ખુલી જાય, એટલે આપણે થોડું દાખલો કરીએ કે અવાજ ખોલવાનો. તમે એવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનની જય બોલાવો કે થોડો ભગવાન પણ મને મદદ કરે અને આપણો અવાજ ખુલે. બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. હજી જરા જોરથી બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ કંઈક મેળવવા, તો ભગવાનની દયાથી ભગવાને આપણને બહુ આપ્યું છે, પણ માણસની જાત એવી છે કે એને ઓછું પડે છે, એટલે આપણે એમ લાગે કે હજી વધારે મળે તો સારું, હજી વધારે મળે તો સારું. અને આપણે બધા અહીંયા આજે ભેગા થયા છીએ કંઈક વધારે મેળવવા માટે. એટલે હું તમને બધાને કેમ પૈસા વધારે કમાવાના એ વાત નહીં કરું. नहीं, इसमें क्या है कि मैं गुजराती में बोलने लगा था ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी. मैं जो आज यहाँ आशा लेके आया था आपकी साथ बात करने का, तो उसमें मनुष्य कहे मैं करूं करतल दूजा कोई, आधजा अधवच्चे रहे हरि करे सो होय. भगवान की कोई एवी इच्छा होगी कि गोविंद तेरे को बहुत अभिमान आ गया है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मगर मैं चाहूं तो ही तू बोल सकता, नहीं तो नहीं बोल सकता. ये भगवान ने अपने को मैसेज देने के लिए एक क्षण आया है, तो उनको भी स्वीकार करने का. मैं आज आपको पैसा कैसे कमावे उनके लिए सलाह सूचन देने को नहीं आया, मगर अपना जीवन सार्थक कैसे बने, हम कौन हैं और जीवन सार्थकता क्या है, मानवता क्या है, हम मानव बने तो मानव कैसे बने, इसके लिए हम बातचीत करेंगे. देखो, अपने यहाँ सब लोग पैसा जिसने कमाया वही लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिसके पास पैसा है, मगर पैसा ही सुख दे सकता है ऐसे मत समझो. पैसा ही सुख दे सके तो हम सब लोग सुख खरीद ले और हमारा वर्कर के लिए, हमारा नौकर के लिए सुख बचे ही नहीं. ऐसा नहीं है. तो सुख अपनी समझण में है, हमारी समझ क्या है, सुख समझ में है. तो ये बात करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं. देखो, सबसे पहले उदारता का इतिहास होता है. कैसा इतिहास कैसे बनते हैं? उदारता का. जो लोग देते हैं, तो 2 मिनट में पहला मेरा परिचय दे दूं कि मैं एक गांव का 700 की आबादी का गांव
गांव में 1 से 4 स्कूल, और मैं आई एम स्टडी ओनली 7 but not given 7 exam also. I have certificate only 6. Sorry हो। तो बिकॉज मेरा गांव में धुड़िया गांव कुछ भी नहीं था। 11 ईयर तक एक पैर ने चप्पल नहीं देखा था, और 7 साल तक मैंने सड्डी नहीं पहनी थी। स्कूल में जब पहली बार गया तब पहनी, तो आपको नवाई लगेगा कि गोविंद काका ऐसे कैसे बात करते हैं। हमारे गांव में कोई लड़का नहीं पहनता था, मैं नहीं, कोई लड़का नहीं पहनता था। ये तो गांव की सिस्टम थी, हमारे ऊपर बाल नहीं था। मैं पहली बार स्कूल में गया तभी बाल रखा, नहीं तो वो टका ही रखता था। गांव में सबको, क्योंकि गांव में नहाने का नहीं था, जब बारिश आवे तभी हम स्नान करते थे, तो स्नान करने का रिवाज नहीं था, किसी को नहीं था। ये लाइफ हमने जी। 2 बार मेरे को बिच्छू काटा है खेत में से। कि बिच्छू को क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियो, क्या बिच्छू ही बोलते हैं। तो मित्रों, ये लाइफ में से मैं सूरत में आया, उसको 60 इयर्स हो गया। मेरा गांव वेस्ट गुजरात में, सौराष्ट्र में है। तो सूरत में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए मैं आया, तभी सूरत में ओनली 200 वर्कर डायमंड पॉलिशिंग एंड कटिंग, टुडे 1 मिलियन। और मैं जब ये 2 अप्रैल को 60 इयर्स मेरे को सूरत में खत्म होगा। तो मैं जब सूरत में आया तभी सूरत का पॉपुलेशन 3 लाख, आज 82 लाख। ये सब सूरत को, राष्ट्र को मैंने बड़ा हुए देखा है। तभी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का एक्सपोर्ट 7 करोड़ का था, आज 2 लाख करोड़ का। तो इतना बढ़ता हुआ हमने देखा है। तो मैं खाली आज लंबी बात कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको जो मैसेज मेरे को देने का है, 1 2 4 मैसेज दे दूं, और आज आपको फायदा भी होगा। मेरा आवाज बैठ गया, वह अपना टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि नहीं तो मैं 1 घंटा मिनिमम बोलता हूं। मगर आज आपको फायदा हो गया कि आपको बोरिंग नहीं करूंगा ज्यादा। देखो, जो संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। तो हमारी कंपनी में, हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार अगर हम झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ देवे। तो ये सच बोलने से ही पैसा भी मिलता है, ये है। हमारी कंपनी में 7000 स्टाफ मेंबर है हमारे पास। टोटली व्यसन मुक्त है, नो एडिक्शन। हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो 7000 पीपल, वो सात्विक लोग का मिलावड़ा है, ये जीवन सार्थकता है। मैं आपको यही मैसेज देने के लिए आए हैं, जो गांधी जी की मम्मी ने, गांधी जी का बाने, गांधी जी जब पढ़ने के लिए फॉरेन गया तभी दिया था कि आप फॉरेन जा पढ़ने के लिए, मगर मांस, मदिरा और मोहिनी तीनों को त्याग करने का। तो मांस, मदिरा और मोहिनी, तो वो तीनों को त्याग करने का। मगर डोंगरे जी महाराज ने चौथा बोला, जुआ। डोंगरे जी महाराज ने बोला, अगर जुआ हमने खेला और तो हमारी 3 जनरेशन हमने कमाया, 3 जनरेशन। मगर एक अगर लड़का जो जुआ वाला निकला तो एक रात का खेल है, वो
एक रात में पूरी संपत्ति 3 जनरेशन की खत्म कर देगा। जुआ। तो आप लोग आज गोविंद काका को मिले हैं, तो आप आज 4 चीज गोविंद काका की है जो मान्यता, एक प्रचार, ये आप मानेंगे, ये जीवन जीने की जड़ी बूटी है। क्योंकि लोग ड्रिंक लेते हैं तो बोलते हैं कि मस्ती होता है। क्या मस्ती होता है? ये 75 इयर्स मेरा हुआ, तो मस्ती तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होती तो बॉटल क्यों ना उछलती? कभी शॉपिंग शॉप में जाओ, बॉटल कभी डांस करती है? मस्ती मुझ में है, अपने में है। तो अगर हमारे साथ जो काम कर रहा है उनको अपने बांटने का काम करने का है। हमारी कंपनी के पगार का पी बोलने का मना है। 55 साल हो गया कंपनी को, कभी भी एक पण व्यक्ति ने पगार के लिए डिस्कस नहीं किया। हम जो पगार का पूछते हैं उनको रखते नहीं है, क्योंकि पगार कौन मांगता है? नौकर। नौकर का मीनिंग क्या होता है? कहीं नहीं करना, कुछ नहीं करना और पगार लेना, उसको नौकर बोलते हैं। हम नौकर नहीं रखते, हम मानस रखते हैं, आदमी रखते हैं, मानस, मानवता। और हमारा खुद का सिद्धांत है, कंपनी का सिद्धांत है, उनकी जितनी भी लायकात है उससे 20% ज्यादा दो, 10-20% ज्यादा। तो क्या होता है, कभी अपने को कोई लोग बोलता है, हम क्या करें अंकल, हमारे को मानस नहीं मिलता, हमारे को ज्यादा स्टाफ नहीं टिकते। भाई जिम्मेदार हम हैं, अब उसको 20% 40% ज्यादा दे दो, वही टिकेगा, कहाँ जाएगा? अगर ले जाएगा तो उनको नुकसान जाएगा। ये बांटने का है। अपनी पास जो पैसा हुआ ये सब हमारी लायकात से हुआ। देखो ये गोविंद काका 7 स्टैंडर्ड वाला, ये भगवान ने इतना दिया। ये बस गोविंद काका की कोई लायकात है? कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पुराना, जैसे अभी लक्ष्य राज सिंह है, उनके पास तो 300 साल का उनका बाप दादा का आ रहा है, तो बीचा उनको तो मिले। गोविंद काका को तो उनका फादर अपने बोलते आदिवासी जैसा जीवन जीता था, गोविंद काका भी जीता था, तो ये उनको कैसे मिले? तो देखो प्रारब्ध में होते हैं तो मिलते हैं, मगर मिलने का है बांटने से मिलते हैं, बांटने से। तो आपको मैं मैसेज देने के लिए आया हूँ। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, सात्विक आदमी हैं, आप बांटो। और शुरुआत कहाँ से करो? कहाँ से? तो हमारी नजीक कौन रहता है? एक महाराज, हमारा घर में जो रसोई बनाते हैं महाराज, तो एक महाराज को बांटो, एक घर नौकर और एक ड्राइवर। ये तीनों हमारे साथ रहते हैं। शुरू वहां से करो। आपका घर नौकर का जितना भी सैलरी है मेरे को मालूम नहीं, उनको मिनिमम 25,000 से शुरू करो। जब रखो पहला पगार 25,000। ड्राइवर जब रखो उनका पहला सैलरी 40,000, बाद में बढ़ते जाएंगे। और जब महाराज रखो, रसोई बनाने वाला, उनकी पहली सैलरी 50,000, बाद में वो बढ़ती जाएगी। देखो ये जैसे हमारी पति पत्नी नजदीक रहते हैं, भाई बहन माँ बाप, उनसे ज्यादा ये लोग हमारी नजीक रहते हैं। ड्राइवर 3 ये से अलग बैठता है। देखो घर नौकर हमारा बेडरूम में जाते हैं, हमारा बाथरूम में जाते हैं, सब साफ करते हैं। तो एक बार हमारे साथ वो जुड़ा, वो हमारा फैमिली मेंबर बन गया, तो उनकी तो लाइफ हमारी जैसी ऊंची होनी चाहिए। पैसा बिना कैसे बनेगी? और जब घर नौकर जावे, सेठ
हमको 20,000 दो ने घर जाने का है, ऐसा बेचारा मत बनाओ। उनका खुद का पैसा से वो जावे, आनंद से जावे। देखो ये जीने की अमृत जो बोलते हैं ना, जड़ी जीवन जीने की ये जड़ी बूटी है। एक बार आप करके देखो, आपका जीवन जैसा है अभी उससे 10 गुना अच्छा हो जाएगा। खुद का जीवन अपना, इसमें कोई करेगा नहीं करेगा। उसके बोलेंगे कि गोविंद काका तो मूर्ख है, गोविंद का को गांडो से, उनको क्या पता कि ये लोग को तो बेचारा घर नौकर को 7,000 ही देना चाहिए। अगर कभी 15,000 पति ने कर दिया तो पत्नी झगड़ा करती है, तो ये पत्नी ने कर दिया तो पति झगड़ा करता है। ये हमारी अज्ञानता है, ये सुख का एड्रेस नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है, आज से पैसा बांटने की शुरुआत करो। कितना बांटने का? देखो, पैसा बांटने से कभी कम नहीं होता, कभी। ये जब भाग्य में नहीं होता है, कितना भी पकड़ो वो रहेगा नहीं। तो बांटो, यत्र तत्र सर्वत्र। आप कभी मार्केट में जाते हैं, आप लोग कभी बार्गिंग करते हैं? अगर करते हैं तो आप लोग गलत है। भगवान ने इतना पैसा दिया और हमें कोई शॉप में जावे, कोई फेरिया के पास जावे, शाक मार्केट में जावे, तो बांटो। उसमें कभी बार्गिंग मत करो। उनकी जरूरत है, ये जरूरत वालों को दो आप। बस यही मैसेज मैं देने के लिए आया हूँ कि जीवन जीने की ये जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी अपनी पास है, हमारी अज्ञानवश हमको ये मालूम नहीं कि सच्चा जीवन क्या है। तो इसलिए आपको ये मैसेज मैंने दे दिया। क्यों? कि संबंध जो होते हैं वो साचा ना होए। भाई हिंदी में साचा हुआ ने शू के संभालना होता है, संबंध संभालना होता है, और पैसा वापरने के लिए होता है। हम क्या करते हैं? पैसा को संभाल के रखते हैं और संबंध को वापरते हैं। ये गलत है, ये गलत है। अमूल्य संबंधों अमूल्य है। हमारा फ्रेंड, हमारा संबंधी, हमारा सब्जी, हमारा भाई बहन, काका दादा, गांव वाला, ये अमूल्य है। उनके साथ कभी भी हम दूरी नहीं जानी चाहिए। ये तो जीवन है। तो ये इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। नहीं तो हमारा ये सेशन में खत्म करता हूँ। क्यों? कि मेरा आवाज सपोर्ट नहीं दे रहा है, इसलिए आपको जरूर उसमें मन में होता है कि अभी काका बंद करे तो अच्छी बात है। खुल गई? नहीं, एनी क्वेश्चन? जो मैं अब एक गया था महाराष्ट्र में, छोटा गांव था, कहूँ तुम जालना। तो मैं जालना सब व्यापारियों से मिला, बात किया और यही बात सबको बताया। ड्राइवर का, घर नौकर का, महाराज का, बांटो, आनंद करो, आपका जीवन धन्य कितना हो जाएगा। तो मैं एक भाई के घर में खाना, में नाम नहीं दूंगा, खाना खाने को गया उसके घर पे, उनकी कार में। तो कार में से जब नीचे उतरा तो वो सेठ ने बोला ड्राइवर को, ए तेरा आज से 5,000 पगार बढ़ गया। वहां उसने बढ़ाया। तो ये आप लोग करेंगे? नहीं। गोविंद काका ऐसा नहीं कि बोलने के बाद आपको बोलते हैं। देखो, जो पालन नहीं करे उनको बोलने का अधिकार नहीं है। तो हम पालन करके बोलते हैं। हमारा घर नौकर का कोई पगार 25,000 से कम नहीं, 25 से 40,000,
और हमारा ड्राइवर का 40 से 60,000 और महाराज का 50 से 75,000, तो हम ये करके बोलते हैं। और ये लोग हमारा पूरा फैमिली के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। कुछ आया तो कोई एक शब्द शेठ का और शेठ का फैमिली का विरोध में वो सुन नहीं सकते। ये जीवन है, तो ये आपको करने का है। मैं देव अब अभी करते हैं। भाई एनी क्वेश्चन? आई वांट क्वेश्चन। सफलता का हमारा मेन राज है मेरा स्वभाव, क्योंकि भगवान ने बनाया। स्वभाव कौन बनाता है? स्वभाव कहाँ से आता है? यहाँ से, माइंड में से। और माइंड कौन बनाता है? नेचर, कुदरत। हम उनको भगवान बोलते हैं, मगर नेचर, हम मन को क्या बोलते हैं? स्वभाव को नेचर। ये नेचर, ये नेचर। नेचर हमने तो बनाया नहीं भाई साहब। किसने बनाया? नेचर ने। नेचर ने नेचर बनाया। तो हमारा नेचर ही हमारा भावी है। जिसका स्वभाव सुंदर, ये भगवान को भी बहुत प्यारा लगता है। तो स्वभाव सुंदर होना चाहिए। क्या हो गया कि जब मैं सूरत आया, 6 इयर्स मैंने फैक्ट्री में काम किया, 1964 टू 1970। 103 रुपया का पहला सैलरी और 600 रुपया का लास्ट। बाद में फैक्ट्री शुरू की हम 3 फ्रेंड ने, और बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। क्यों? कि जब 1968 में मैं वर्कर था, हम रविवार के रजा के दिन तीनों घूमने को शहर में गए। वहाँ डोंगरे जी महाराज का भागवत कथा चल रहा था, और जब कथा का आवाज मेरे कान में आया, मेरे को समाधि लग गई। वो आज मालूम पड़ता है कि वो समाधि था। तो मैं वहाँ बैठ गया। मेरा फ्रेंड कहाँ गया, रुक गया, मेरी चला गया, कुछ मालूम नहीं। मैं 2 घंटा बैठा। शाम को कथा खत्म हो गई। 6 बजे मैं हमारा बॉस के घर पे चला गया। उसको बोला कि मैं अभी 7 दिन नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को डोंगरे जी महाराज की कथा सुनने का है। ये बोला तेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि तू जो रूटीन का काम करते हैं, तू अगर नहीं आएगा तो 8 वर्कर मेरा बैठेगा। तो हमने दोनों ने निकाला कि हम रात को मैं आऊँगा। पूरा दिन कथा सुना। रात को 6:30 बजे, दैट टाइम आई एम 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो मैं रात को 6:30 बजे जाता था ना, रात 12-1 बजे तक मैं ये पूरा डायमंड 20 बना देता था। सुबह में कथा सुनने का। कथा में क्या आया कि ये सृष्टि का नियम है कि आपको जो भी दो वो आपको वापस मिलता है। आप अगर किसी को पैसा दो तो आपको अनेक गुना पैसा वापस मिलता है। अगर आप किसी को प्यार दो तो अनेक गुना प्यार मिलता है। अगर आप किसी को नफरत दो तो आपको अनेक गुना नफरत मिलता है। तो उसने फिर पूछा डोंगरे जी महाराज के, आपका हृदय को पूछो कि आपको कोई मान सम्मान दे तो आपको अच्छा लगता है? तो मैंने तो पूछा। तभी वो बच्चे को, लड़के को इतना हम लोग नहीं देते थे मान सम्मान। ये बड़े लोग को मालूम होगा, अभी तो हम बहुत देते हैं। तभी नहीं देते क्योंकि हम 5 भाई 2 बहना, किसको दे? तो ऐसे करके तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि आप ऐसा करो, जैसे हम हिमालय में जाते हैं, वहाँ लाखों पहाड़ियाँ हैं। वहाँ जाके अगर कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहाँ जाके कोई बड़ा आवाज से बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश। ऐसे इस सृष्टि का नियम है कि हम जो भी दो हमको अनेक गुना वापिस मिलते हैं। तो मैंने किया वो तो मुफ्त में है, तो अखतरो करना चाहिए। तो मैं दूसरे दिन
फैक्ट्री में जाके सबको आप बोलने लगा, क्योंकि सब 15 से 25 साल का लड़का था, 40 फैक्ट्री में। सब मेरे को गोविंदा बोलता था, भगवान भाई हो तो हम भगलो बोलते थे, लालजी भाई है तो लालो बोलते थे, ऐसे सब तुकारे बोलते थे। दूसरे दिन मैंने सबको आप बोलने का शुरू किया, भगवान भाई, खानजी भाई, लालजी भाई, तो सब लोग बोला गोविंदा नु खाई गयो छे, तो उसका खिसक गया है, ऐसा सब लोग बोला। तो मैं खाली हंसी दूं, बोलूं नहीं कुछ। देखो 2 महीने में ऐसा चमत्कार हो गया कि पूरा वो बॉस जब चाय मंगावे तो आधी चाय मेरे को दे, पास में बिठावे, और मेरा कोई मश्करी करे तो 3 लोग आ जाए, ऐ गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदा, मफत में गोविंद भाई हो गया 2 महीने में। तो मैंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है वो बहुत काम की है, ये फॉर्मूला के हिसाबे में पूरा जगत जी गया। क्यों कि मेरा छोटा भाई 6 साल छोटा स्कूल में पढ़ता था, सबसे पहले उनको आप बोलने का शुरू किया, पूरा विश्व को मैंने आप बोला, और मेरा बाद में लड़का हुआ, भतीजा, भांजा, सबको आप ही बोलता हूँ जन्म से, कभी किसी ने तू नहीं बोला मैंने। तो भाई जय भाई हिल भाई, ये दोनों मेरा भांजा है, बेटी का बेटा है, तो उनको जन्म से मैंने तू नहीं बोला, मेरा भांजा है 3rd जनरेशन, मैं आप ही बोलता हूँ। उसका राज क्या हुआ कि 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, और 40 साल से मेरे को क्रोध नहीं आया, क्योंकि कोई मेरे अगेंस्ट में है नहीं, मेरे को क्रोध कैसे आवे। तो 40 साल मैंने क्रोध नहीं किया। तो आप लोग बोले कि गोविंद काका आप तो झूठे हैं, क्रोध तो एक बार तो आ ही जाए ना। ये फॉर्मूला है क्रोध की, मेरी 20 मिनट की फॉर्मूला है, ये ऑनलाइन यूट्यूब में गोविंद ढोलकिया डालेंगे तो निकलेंगे। तो ये सब जो मैंने दिया है कि क्रोध कैसे नहीं आवे और कैसे हमको जीने की फॉर्मूला बहुत कुछ है। तो जब मैंने फैक्ट्री शुरू किया और हम आप बोलते थे तो वर्कर को आप बोलने का शुरू किया, तो जहां कंपनी 5 साल में पहुंचने वाली थी या 2 साल में पहुंच गई। क्यों कि सब बोले शेठ बहुत अच्छा है, हमको आप बोलते हैं, चलो चलो। तो ये वर्कर को लेके आए और बन गया। देखो धर्म बढ़े धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़े, और मन बढ़े तो मान बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। उसका मीनिंग है धर्म जो बढ़ जाए हमारा जीवन में, तो धन मीन्स पैसा, तो ये धन बढ़े तो मन बढ़े। हमारे पास पैसा है तो हम बांटेंगे, नौकर को ज्यादा देंगे, जो कि नौकर को तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि वो क्यों नौकर क्यों रखे अगर इतना पैसा नहीं है तो नौकर तो हम रख सकते हैं, मगर सोशली सबके लिए बांटने की जगह हो जाती है। मन बढ़े तो हमारा मन बढ़े तो हम किसी को देने, और मान बढ़े जब हम किसी को बांटे तो हमारा मान बढ़ जाता है, फिर बढ़त बढ़ जाए। मगर धर्म कौन सा? कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन नहीं। धर्म होता है मानवता। धर्म का नाम ही है मानवता। तू मानस बन, मानस। तो मानव बनने का क्या है कि चोरी नहीं करे, चीटिंग नहीं करे, और किसी का बुरा नहीं बोले, उनको मानव बोलता है। तो ये मानव बनना है, वही धर्म है। तो अभी बहुत अच्छा आप लोग ने, इतना मेरा आवाज अच्छा नहीं होने के बावजूद भी इतना अच्छा आप लोग ने हमारी बात सुनी, और हम आज आप लगते हैं कि मेरे को थोड़ा ऐसा शर्म जैसा लगता होगा कि ऐसा आवाज हो गया। नहीं, क्यों कि मैं भगवान जैसे मेरे को जीवावे ऐसे मैं जीता हूं, मैं खुद कुछ नहीं जीता।
तो डोंगरी जी महाराज बोलते थे कि भगवान जो भी स्थिति में रखे उसमें संतोष मानने का उनका नाम है भक्ति। तो मेरे को संतोष है कि आज मेरा आवाज नहीं दिया, मगर अब तक दिया उसका क्या? आज नहीं दिया मगर भगवान ने ये 75 साल तक तो दिया नहीं, उसका क्या? तो उनका ये आभार। आज मेरा क्यों बिगाड़ा वो मेरे को कोई क्षोभ नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा होगी। मैंने पहले बोले ऐसा, हमारा ईगो कम करने का होगा कि कुछ भी, कि तू कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो ही तू है, ये बात बताने के लिए उसने आवाज़ नहीं दी होगी। तो उसमें अपने को कोई टेंशन करने का कि कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपका मेरे को अगर जो आवाज़ अच्छा होता तो ये मैं बात मानता हूँ कि आपको ज़्यादा आनंद आया होगा, मगर ये भी भगवान की इच्छा, क्योंकि ये सब लोग हम क्यों मिले हैं, किसने आयोजन किया है? तो ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है। ईश्वर की योजना से ये सब इकट्ठे हुए हैं। आप लोग जैसा भाग्यशाली पूरा विश्व में कितना लोग हैं? नॉट ओनली 2-3%, ओनली विश्व में, नॉट इंडिया में, विश्व में 2-3% जितना लोग भाग्यशाली है, इसमें हम सब लोग हैं। तो आपको यहाँ भगवान ने पहुँचाया है, और मेरी जो कोई बात आपको अच्छी लग गई तो ये भगवान ने बुलाई है। अगर कोई आपको हर्ट हुआ मेरे से तो ये मेरी अज्ञानता है, क्षमा याचना। और लास्ट में मैं एक बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ कि मैंने जो बोला कि नेचर एंड नेचर, तो हम हमारा स्वभाव से जीते हैं, और हमारी साथ जो भी व्यवहार करते हैं ये सब लोग उनका स्वभाव से करते हैं। अगर हमारी साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया तो हम उनके पास कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, दाज नहीं करेंगे, दया खाएंगे। क्या दया खाएंगे? हम सोचेंगे कि बेचारा और बेचारी कैसे बोलती है, उनको कैसा माइंड दिया भगवान ने कि अभी उनका इतना नेगेटिविटी, बेचारी को दुख सुख कैसे मिलेंगे। तो ये हमको सोच बदलने से हमको सुख मिलेगा, हमको उन्हीं ऊपर क्रोध नहीं आएगा, उनके ऊपर नफरत नहीं आएगा, तो हमारा जीवन एकदम सफल हो जाएगा। तो सामने वाला दुर्व्यवहार करे तो हमको उनके ऊपर दया खाने का, मगर दाज करने का नहीं। तो मेरी ये सब जो बात है, तो ये भाई ने जो बोला था ऐसे कि आज गोविंद काका की बात अगर मगज में बैठे, और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप आपका नौकर का सैलरी आज से 25,000 करेंगे, ड्राइवर का 40,000 करेंगे, महाराज का 50,000 करेंगे। अगर करोड़ नहीं है तो हम नहीं बोलते हैं, मगर करोड़ हो है तो क्यों, यहाँ उससे कम कोई है ही नहीं, तो सबको करने का है। तो मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको गलत रास्ते से मैं नहीं आपको पहचानता हूँ, मैं सही आपका जीवन की जो जड़ी बूटी है ये मैं दे रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। तो जितना आज से आपका स्टाफ का, आपका फैमिली मेंबर जो है वही फैमिली मेंबर है, उनको जो चाहता है उनका आज से बुद्धि बंद करके आज से जो पगार बढ़ाएगा ये ऊंचा हाथ कीजिए। बहुत अच्छा। देखो ये 25 लोग ने ऊंचा हाथ किया, अगर एक ने भी किया होता तो मैं सूरत से यहाँ आया वो वसूल हो जाता। अब 25 लोग ने ये मेरा बात माना। देखो जिसने नहीं माना उसको फिर से मैं प्रणाम करके
उनकी दया खाता हूँ कि भगवान की कृपा की कोई पार नहीं है, और ये जीव जो है उनकी अवलाय भी इतनी बड़ी है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान जीना जीना का रास्ता दे, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सब लोग ने मेरे को सहन किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ मेरे को जो बुलाया ये IMA मैंने उनके साथ यहाँ जो अखिलेश जी है, नवीन भाई खंडेवाल जी, अश्विन भाई जी, सपन भाई जी, और ये सब इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का एनर्जी पावरफुल और सब मेंबर श्री सब लोग पधारे हैं। उनका हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनको प्रणाम करके मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। आयोजकों को खूब खूब आभार, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया और आप लोग ने सहन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। એક મારો અમારા ફેમિલીનો એક ફોટો બતાવે છે કે જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી હું તો ભગવાનની કૃપાથી આ ગોવિંદ કાકાને એટલા બધા સેટિસ્ફેક્શન મળેલા છે કે આટલું મોટું કુટુંબ છે. મારી વાઈફ છે એ અભણ છે અને લગ્નને 53 વર્ષ થયા, પણ એક પણ વખત એણે મારી હારે ઝઘડો કર્યો નથી. मेरा फादर, मेरा दादा है ऊपर कांजी दादा, मेरा फादर 4 भाई 2 बहना, तो मेरा 2 भाई बोलते क्या बोलते हो बुआ बुआ, तो ये 6 फैमिली 6 जनरेशन हम लोग एक साथ में हर साल मिलते हैं एक ही साथ. तो ये पूरा एक ही फैमिली है. और सऊजी भाई ढोलकिया जो है ये मेरा भतीजा है. ये पहला जो सबसे दादा है उनका ग्रैंडसन है. चौथा नंबर में लालजी दादा है, उनका मैं बेटा हूँ. ये एक हमारा फैमिली है, हर साल हम मिलते हैं. ये जीवन है. धन्यवाद. Thank you so much for your insight, sir. I would just request Mr. Akhilesh Rathi to summarize what sir said. I think the time is short as Govind Kaka has to take a flight. So I'll just say 2 things. One, we should all learn from Sunil Singhania ji as to how to make more and more money and follow Govind Dholakia ji's path of giving it to more and more people near us. अपने आसपास हरियाली करें, सबका भला करें, सबका कल्याण करें, अच्छे से जिएं. शायद यही मैसेज आज इस सेशन का है. थैंक यू वेरी मच. I would now like to invite Mr. Ashok Jain, Managing Director, Arihant Capital, to present a memento to Shri Govind Bhai Dholakia. I would also like to mention that after the insights that we got from Govind Bhai Dholakia, he has his autobiography that has recently come out. It's called Diamonds Are Forever, So Are Morals, which I think he has abided by. And if you want to know more about his life, the book is available on Amazon.
Thank you. I would now like to invite Mr. Kailash Garg, Director of EcoBuild, to present a memento to Mr. Sunil Singhania. Sunil sir, I would just like to say that take inspiration from Govindji and give us all a piece of your fund, please. I would now like to invite CA Rashi Mantri, Senior Partner at B Mantri and Company, to take over for the next session. Thank you.